Namaste parents and my dear students. I Rita Kapoor welcome you in RAD online classes. Today we are going to study chapter 10, that is simple present questions and forming negatives. So before starting the class we need some resources, that is a grammar book, notebook, pen, pencil, any other thing. So you can be keep these things with you so that you can do the work easily. And today we have some keywords also, that are questions, negatives and present. These are our keywords for today. So सभी रेडी हो गए अपने रिसोर्सेज के साथ? ओके, नाउ टेल मी, डू यू लाइक आइसक्रीम? Yes, of course, everybody likes ice cream. Okay, now tell me, do you like one flavor more than other ice creams? Certainly, everybody has one different flavor. You like many flavors, but one flavor you like most. So today we are going to study how to ask questions and give negative answers in the simple present tense. आज हम क्या सीखेंगे? आज हम क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और उनका नेगेटिव में आंसर कैसे देते हैं, नहीं में आंसर कैसे देते हैं, और कौन से टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन बनाना और उनके आंसर्स नेगेटिव में देना। हाउ we can frame that we will learn today. Now I am going to write some words on the board, so look it carefully. After that we will discuss. Now you can see some words on the board. To, does, no. You can see two columns are there, and see the words tiger, lion, spider, gorilla. Sweets, games, music, breakfast. What you need to do? एक कॉलम से एक वर्ड लेना है आपको, दूसरे कॉलम से एक वर्ड लेना है, और डू और डज का प्रयोग करके एक सेंटेंस बनाना है। तो आप अभी सेंटेंस बनाएंगे दोनों कॉलम में से एक एक वर्ड लेकर, और डू या डज का प्रयोग करके यू विल मेक one sentence. Okay, you can make some funny sentences also. Pause the video, use your resources, notebook, pencil, and frame some sentences as I told. After that we will discuss. At the board I have written some sentences. Do spiders eat breakfast? I have used two. I have used one word spiders, one is breakfast. From two column I have taken two words. Next is, does gorilla read books? Does elephant like music? So I have used two words from two columns, see, and I have used word does and do. So like that you have made many sentences. So let's discuss how we have made these sentences. First we have used do or does. Then we have used subject, then verb, and then object. In the same manner, here we have used does, then subject, then verb, and then object. So this is the way we frame the sentences. Now look at its answer. Do spider eat breakfast? Okay, we have to give answer in no. So how we will write? No
comma, spiders do not eat breakfast. Come to the second question. Does gorilla read books? Then we will write no. No, gorilla does not read books. Now come to the next one. Does elephant like music? No. Elephant does not like music. So have you observed anything? And look, we have used somewhere do, somewhere does. See, spiders, spider बहुत ज़्यादा होती हैं, they are plural, तो हमने क्या यूज़ किया? do. और gorilla is the single one, we have used does. Elephant is the single one, we have used does. तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं और डू और डज से सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर में है या प्लूरल में. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी ईट, रीड, लाइक, दे ऑल आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द verb. So be careful for these types of rules. So my question is, how do we ask questions about the present or about something that happens every day? Read the question carefully and think about it. तो अभी हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए थे. वी हैव फ्रेम सम क्वेश्चंस. तो हमने कैसे बनाए थे? थिंक अबाउट दिट एंड टेल मी हाउ डू वी आस्क क्वेश्चंस अबाउट द प्रेजेंट और अबाउट समथिंग दैट हैपन्स एवरी डे. व्हाट वी हैव यूज्ड फर्स्ट? वी हैव यूज्ड डू और डज. और लेकिन डू और डज किसके साथ यूज़ होगा? डू किसके साथ यूज़ होगा और डज किसके साथ यूज़ होगा? देखिए, डू प्लूरल नाउन्स और कौन कौन से प्रोनाउन के साथ यूज़ होगा? आई, वी, यू, दे. इन प्रोनाउंस के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? डू. देखिए, डज. डज कहाँ हमने यूज़ किया था? सिंगुलर नाउन के साथ. और प्रोनाउन कौन कौन से यूज़ होंगे? ही, शी, इट. तो देखिए, जब ही, शी, इट हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डज का, क्वेश्चन बनाते समय. और जब आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट होंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का. क्लियर? लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन इन प्रेजेंट टेंस. सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? डू, डज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट. जैसे कि अभी मैंने बताया था, डू
किसके साथ यूज़ होगा और डज किसके साथ यूज़ होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं इन प्रेजेंट टेंस। नाउ टेल मी हाउ टू आंसर इन प्रेजेंट टेंस ऑफ दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन का जवाब हमें नो में देना हो तो कैसे देना है। देखिए हमने कैसे दिया था, सबसे पहले नो, देन इट इज़ फॉलोड बाय कॉमा, नो के बाद हमने कॉमा लगाया, फिर हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट, फिर हमने अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट क्या लगाया, डू या फिर डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट, फिर हमने क्या लगाई, वर्ब, और फिर क्या लगाया, ऑब्जेक्ट, और देन फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम आंसर देंगे, नो, देन कॉमा, फिर सब्जेक्ट, फिर डू और डज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस किया था, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। I think it's clear. Now it's time for HOTS. See, do we use does not and do when there are no pronoun in the question or sentence? अगर क्वेश्चन में या किसी सेंटेंस में अगर प्रोनाउन नहीं यूज़ हो रहा तो क्या हम डू और डज का प्रयोग करेंगे। Okay, look at the example. Does the sun rise every day? देखिए यहाँ पर the sun, this is not pronoun, ये कोई प्रोनाउन नहीं है, ना आई, ना वी, ना यू, दे, ई, शी, ई, कुछ नहीं है इनमें से, तो इट इज़ अ नाउन। और इसके साथ हमने क्या यूज़ किया, डज। इट मीन्स जब सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम डज का प्रयोग करेंगे, डज का। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। Do the boys play games? Do the boys play games? देखिए यहाँ पर क्या था, सब्जेक्ट सिंगुलर। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दिस इज प्लूरल, तो हमने क्या यूज़ किया, डू। क्या यूज़ किया हमने, डू। डू द बॉयज़ प्ले गेम्स। तो नाउ इट्स क्लियर कि जब सेंटेंस में या क्वेश्चन में प्रोनाउन नहीं है तब भी डू और डज का प्रयोग होता है, बट इट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इट चेंजेस, इट बिकम्स डू एंड डज। नाउ इट्स टाइम फॉर सम अप व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और कैसे उनका नेगेटिव में आंसर देते हैं, और क्वेश्चन जो फ्रेम करते हैं वो किस टेंस में फ्रेम करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन बनाना और उनका नेगेटिव में आंसर देना सीखा। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए डू और डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। और आंसर देना हो नेगेटिव में तो हम सबसे पहले नो लगाएंगे, देन कॉमा, then subject, then do not or does not according to the subject, then verb, then object, and at last full stop. Now it is time for your homework. Open page number 38. See the question number 1.
कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। आपको इसमें क्या करना है, सेंटेंसेस को पढ़िए और इसमें करेक्ट नेगेटिव फॉर्म भरनी है। आई लाइक हॉट मिल्क बट आई डू नॉट लाइक कोल्ड मिल्क, लाइक दैट complete the other sentences also. Now come to the question number 2. Complete the sentences by writing the correct question form. A dash your friends dash live nearby. इन sentences को आपको complete करना है by using the correct question form. Do या does का प्रयोग करते हुए इसको complete करेंगे। Do your friends live nearby, like that complete other sentences. Now come to the question number 3. Match the questions and answers. Do you play football? देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या है क्वेश्चन, सेकंड कॉलम में है आंसर। आपको इनको क्वेश्चन को आंसर से मिलाना है। डू यू प्ले फुटबॉल? नो आई डोंट, लाइक दैट मैच other sentences. Now come to the question number 4. Put the words in correct order to form questions. ये आपको जंबल में सेंटेंस दिया हुआ है, जंबल वर्ड हैं, इनको रीअरेंज करना है और आपको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए हम सबसे पहले डू का प्रयोग करते हैं, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू योर parents live in the city and last में question mark, like that make other sentences. Now come to the question number 5. Use the pictures to ask two questions. Start one question with do and the other with does. आपको इस पिक्चर का यूज़ करके आपको इस पिक्चर में जो दिख रहा है उससे संबंधित दो प्रश्न बनाने हैं, टू क्वेश्चंस बनाने हैं, जो कि स्टार्ट किससे होंगे, डू एंड डज से। एक आप डू से स्टार्ट करेंगे और दूसरा डज से, और इस तरह बनाएंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. आंसर द क्वेश्चंस इन द नेगेटिव्स। डू यू लिव नियर द सी, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है आपको नेगेटिव में। नो आई डू नॉट लिव नियर द सी। इस तरह से आप बाकी के सेंटेंसेस बनाएंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. चेंज द स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चंस यूजिंग डू और डज। अब ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनको आपने क्या करना है, इनको क्वेश्चन में चेंज करना है डू और डज का प्रयोग करके। दे प्ले फुटबॉल इन देयर फ्री टाइम, तो कैसे करेंगे, डू दे प्ले फुटबॉल इन देयर फ्री टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. Write a short paragraph about the children. Say what they do not do. The first sentence has been done for you. The children are playing. They don't stand on the swings. तो आपको क्या एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है चिल्ड्रन के बारे में, और आपको क्या बताना है, से व्हाट दे डू और नॉट डू, जो वो करते हैं और जो वो नहीं करते हैं। और फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए यहाँ पर कर दे दिया गया है। देखिए, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, दे डोंट स्टैंड ऑन द स्विंग। ये चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ये कार्य वो करते हैं और ये वो नहीं करते। इसी तरह से आप पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। नाउ कम टू द बी पार्ट. नाउ चेंज योर पैराग्राफ टू टॉक अबाउट जस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन। अब आपको सिर्फ उन बच्चों में से एक बच्चे के बारे में लिखना है। देखिए कैसे सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ बीन डन फॉर यू, द बॉय इज़ प्लेइंग। पहले चिल्ड्रन था, अब यहाँ द बॉय आ गया। ही डज नॉट स्टैंड ऑन द स्विंग, और उस एक के लिए यहाँ पर क्या आ गया, ही। लाइक दैट यू विल कंप्लीट द पैराग्राफ। नाउ कम टू द क्विज पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग डू, डज, डोंट और डजेंट। तो आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है जिसमें आपको डू, डज, डोंट और डजेंट का प्रयोग करना है। मॉली, डैश यू लाइक पार्टीज, डू यू लाइक पार्टीज, सेम, लाइक दैट यू विल कंप्लीट दिस। क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट द क्लूज एंड द पिक्चर्स। क्लूज देखिए और पिक्चर्स देखिए, कंप्लीट द कन्वर्सेशन, और उसके बाद आप ये कन्वर्सेशन कंप्लीट करेंगे। आपको देखना है पिक्चर में
कि क्या हो रहा है, और फिर उन क्लूज़ के माध्यम से आपने इनको कंप्लीट करना है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. इसमें भी आपको पिक्चर को देखना है. लुक एट द पिक्चर. देन व्हाट आर फ्रेंड्स टॉकिंग अबाउट. ये फ्रेंड्स आपस में क्या बातें कर रहे हैं. राइट कन्वर्सेशन बिटवीन देम यूजिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स इन द नेगेटिव. इन दोनों की बातचीत को आप लिखेंगे यहाँ पर, जिसमें आपने क्वेश्चंस भी लिखने हैं और नेगेटिव आंसर्स भी लिखने हैं. लाइक दैट यू विल कंप्लीट दिस. I hope you have understood the today's topic. So thank you and have a nice day.